Yes, so once again a very good morning to all of you. हम डिस्कशन में ले रहे हैं कुछ केसेस हमारे चैप्टर 1 से रिलेटेड. एज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द चैप्टर इन आवर लास्ट क्लास, तो कुछ क्वेश्चंस है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. पूनम गांधी के क्वेश्चंस भी हम ले रहे हैं. फर्स्टली यू आर सपोज टू ओपन पेज नंबर 26 ऑफ योर बुक, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं रिलेटेड टू नेचर ऑफ मैनेजमेंट. एमसीक्यू नंबर 1 रीड कर रही हूँ. आंसर जिसको आता हो विद एक्सप्लेनेशन, सिर्फ टिक नहीं, क्योंकि वो तो आपको दिख रहा है आंसर्स ऑन पेज नंबर 57. वहां से देख के सिर्फ आंसर नहीं बताना है, यू विल हैव टू एक्सप्लेन द पॉइंट. वो हैंड रेज कर लेगा. इज इट ओके? जस्ट हैव अ लुक. In order to become a lawyer, one has to register himself as a member of Bar Council of India. Which feature of profession being revealed here? लॉयर अगर किसी को बनना है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा खुद का बार काउंसिल ऑफ इंडिया में. प्रोफेशन का कौन सा फीचर यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है? Who will give the answer? Yes, girl. Ma'am, restricted entry. Restricted entry. Are you sure? No, ma'am. Presence of professional associations. Presence of professional association. Once again, are you sure? Yes, ma'am. Up to sure. Yes, this time girl is sure. Yes, your answer is 100% correct. Presence of professional association. Gav, now you have to explain me. Is there any professional association present in case of management also? Yes, beta. AIMA in New Delhi, National Institute of Personnel Management in Kolkata, etc. Yes, some professional institutes are present in case of management also. Very good. Just have a look. क्वेश्चन हमें बोल रहा है लॉयर बनने के लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर होना पड़ेगा. प्रोफेशन का कौन सा फीचर है ये? तो फीचर है ये 4th नंबर ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन. क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोफेशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो इट विल बी कंपल्सरी फॉर यू टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड. ऑप्शन 1 इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री आपको तभी लिखना है जब डिग्री की बात हो. अगर यहाँ पे ये कहते हैं इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉयर वन हैज टू क्लियर द एग्जामिनेशन ऑफ LLB एंड LLM, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ प्रोफेशन, तो हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री लिखते हैं कि विदाउट पासिंग द एग्जामिनेशन वन इज अनेबल टू get himself started as the work of profession, right? तो हमें उस अकॉर्डिंग आंसर को फ्रेम आउट करना है. नाउ जस्ट हैव अ लुक. सेकंड की बात करते हैं. रीड इट बाय योरसेल्फ आल्सो, ताकि आप आंसर्स के लिए अपना हैंड रेज कर सके. जस्ट हैव अ लुक. State the common feature of science, art and profession which is present in management also. ये तो सभी को आता है. Common feature of science, art and profession कौन सा है? Who will let me know? Yes, Himakshi. Systematic body of knowledge. Systematic body of knowledge. Can you explain the point? Wait for a second. Vahini, will you explain the point? Yes, ma'am. Ma'am, in this we have courses for a particular subject or particular course. Like we have books and all the courses or trainings for this particular thing for management. Yes, perfect. The first point, that a systematic body of knowledge, is the answer of question number 2. ये कह रहे हैं कौन सा फीचर ऐसा है जो कॉमन है साइंस, आर्ट और प्रोफेशन का, प्लस दैट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट आल्सो. तो फर्स्ट पॉइंट प्रेजेंट है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. इट मींस स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल whether you want to go for science, art, profession or for management. आपके पास बहुत सारे courses available हैं, बहुत सारा study material available है. Okay, now just have a look on point question number 3. Let's read the question. Management has evolved like a discipline. Management एक discipline की form में बन चुका है. There are number of books on management. Students are learning from these books various principles and theories of management. But all students of MBA do not become successful management only by learning these principles. The success depends upon creative application of these principles. Today, many companies have started giving importance to corporate social responsibility and business ethics. क्या कह रहे हैं ये?
कि मैनेजमेंट भी एक सेपरेट डिसिप्लिन के फॉर्म में एमर्ज हो गया है। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मैनेजमेंट पे, स्टूडेंट्स इन बुक से बहुत सारे प्रिंसिपल्स सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बट सारे एमबीए लर्नर्स जो है वो सक्सेसफुल मैनेजर नहीं बन पाते इन प्रिंसिपल्स को पढ़ के। सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है कि वो कैसे इन प्रिंसिपल्स को क्रिएटिवली अप्लाई करते हैं। प्लस आजकल बहुत सारे कंपनीज ऐसी है जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस एथिक्स को इंपॉर्टेंस दे रही है। नाउ दे आर आस्किंग यू the above in the above para one feature of science art profession each are given, identify one of them by quoting line। ये कह रहे हैं ऊपर वाला ये जो केस स्टडी है इसमें तीनों के कुछ कुछ फीचर दिए हुए, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तीनों के एक एक फीचर की बात की हुई है। यू हैव टू आइडेंटिफाई देम एंड यू हैव टू एक्सप्लेन देम आल्सो। जस्ट हैव अ लुक, यहाँ पे हमने हाईलाइट कर लिया है। नंबर 1, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पे भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। जब बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को हमने किससे कंपेयर कर दिया है, साइंस से कंपेयर कर दिया है। ऑल्दो ये नंबर ऑफ बुक्स वाला साइंस आर्ट प्रोफेशन तीनों में है, लेकिन आगे जब हम स्टडी करेंगे तो साइंस का और कोई पॉइंट हमें नजर नहीं आ रहा, इसलिए हम इस फर्स्ट पॉइंट को ले लेंगे एज अ फीचर ऑफ साइंस। नाउ जस्ट हैव अ लुक, द सक्सेस डिपेंड्स अपॉन क्रिएटिव एप्लीकेशन। हमें पता है क्रिएटिव एप्लीकेशन की, क्रिएटिविटी की जब भी हम बात करते हैं तो क्रिएटिविटी आती है आर्ट के अंदर, राइट। क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें तो क्रिएटिविटी यहाँ पे आपके सामने आएगी आर्ट में, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट की बात करते हुए यहाँ पे हमने जिसको हाईलाइट किया है वो है द सक्सेस डिपेंड्स अपॉन क्रिएटिव एप्लीकेशन। आप ये लाइन लिखेंगे और फिर इस लाइन को लिखने के बाद में लिखेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इसके बाद में जब मैं थर्ड की बात करूं, मेनी कंपनीज हैव स्टार्टेड गिविंग इंपॉर्टेंस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये थर्ड सेंटेंस जो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, टुडे मेनी कंपनीज हैव स्टार्टेड गिविंग इंपॉर्टेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। आजकल बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कंपनी की जो सोशल फाउंडेशन है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर भी फोकस कर रही है और बिजनेस एथिक्स पे भी फोकस कर रही है। तो ये आया था आपके सर्विस मोटिव के अंदर। प्रोफेशन का जो लास्ट पॉइंट था सर्विस मोटिव, उसमें ये लिखा हुआ था कि आजकल खाली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, वी हैव टू गिव प्रायोरिटी टू सोशल ऑब्जेक्टिव आल्सो। तो यहाँ पे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन हम लिख देंगे पॉइंट नंबर थर्ड को। अब आपको इसको आइडेंटिफाई करने के बाद में एक्सप्लेनेशन भी देना होता है। नाउ इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस केस स्टडी यू कैन आस्क मी। कोई भी आंसर ये क्यों हो रहा है, जो आंसर हमने पिक किया है वही इसका आंसर क्यों है, कोई और आंसर हो सकता है क्या, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में हो तो यू कैन आस्क मी। चलिए पेज नंबर 31 पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस है, देखते हैं हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। सो आई एम रीडिंग द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव टू identify the answer and then after you will be raising your hands for the answer. So question number 1, as middle level of management, make sure that department has the necessary persons or employees. Which level of management make sure right number of workers are there and they are having good working condition? चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट तो ये इंश्योर करता है कि उनके डिपार्टमेंट में नेसेसरी पर्संस है और एम्प्लॉयज है। आपको पूछ रहे हैं कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि सही जितने वर्कर चाहिए उतने वर्कर अवेलेबल है, प्लस द वर्कर्स आर हैविंग गुड वर्किंग कंडीशंस। दैट मींस वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन बढ़िया है, वो सेफली वर्क कर रहे हैं। हु विल गिव द आंसर? बी क्विक। यस वाहिनी। Ma'am, supervisory level. Supervisory level, these are the persons who are directly linked up with the workers and they are responsible for maintaining good working conditions. Very good. Okay, now the next one, just have a look. If superintendent belong to supervisory level, then plant superintendent will belong to superintendent lower level पे काम करता है, तो plant superintendent का कौन सा level होता है? अगर हम बात करें अलग अलग लेवल्स पे काम करने वाले अलग अलग लोगों के नाम हमें याद होने चाहिए थे, राइट। तो प्लांट सुपरिटेंडेंट जो प्लांट एंड मशीनरी को संभालेगा, पर्टिकुलरली इसका वर्क एरिया डिसाइडेड है,
तो बताएं कौन सा लेवल होगा इसका? यस सुशांत। मैम मिडिल लेवल। मिडिल लेवल, व्हाई सो? मैम एक स्पेसिफिक मैम एरिया का मैम सुपरिटेंडेंट है मैम, हेड है बिल्कुल। उसका, तो वो तो मिडिल लेवल ही आएगा। बिल्कुल, वेरी गुड। अगर हम कहें कि प्लांट एंड मशीनरी तो हम कह सकते हैं ये एक सेपरेट एरिया हो गया, एक सेपरेट एरिया, एक सेपरेट एक्टिविटी को संभालने वाला पर्सन है, तो वी विल बी ट्रीटिंग हिम एज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। चलिए हमने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो कि थे एमसीक्यू। थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड केस स्टडी है एमसीक्यू से डिफरेंट, जस्ट हैव अ लुक। Ashutosh Goenka was working in X Limited, a company manufacturing air purifiers. He found that the profits had started declining from the last 6 months. Profit and implication for the survival of the firm. Sorry, profit has an implication for survival of the firm. So he analyzed the business environment to find out the reasons for this decline. Now what you are supposed to do, you have to identify the level at which he is working and you have to explain any 3 other functions which will be performed by him at this level. चलिए मैं आपके लिए की लाइन हाईलाइट कर देती हूँ, देन आफ्टर यू आर सपोज टू गिव द आंसर। एक बार दोबारा इसको पढ़ लीजिए केस स्टडी को और फिर आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से लेवल का मैनेजर होता है जो ये एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जिसको मैंने यहाँ पे आपके लिए रेड रेक्टेंगल से हाईलाइट किया है। ओके, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेडी विद देयर आंसर्स, दैट्स ग्रेट। यस राघव। टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है आपका आंसर। द लेवल एट विच आशुतोष इज वर्किंग इज टॉप लेवल। व्हाई सो बेटा? मैम बिकॉज ही इज एनालाइजिंग एंड ही इज मेकिंग, मतलब ही इज मेकिंग प्लान फॉर फ्यूचर्स आल्सो। Yes, because he has analyzed the business environment, right? And analyzing the business environment is basically a function of top level management. Very good. Okay, now Ria, tell us some other functions of top level management. Framing of plan and policies, Okay. responsible for welfare and survival of the organization, and Yes. to integrate diverse elements and coordinate the activities. Yes, very good. 3 other functions, right? Framing of plans and policies, integration of various elements, and arranging for finance and fixed assets. ऐसे बहुत सारे functions. मैम Yes. मैम जैसे ये केस स्टडी है, इसमें ना सबसे फर्स्ट वाले पार्ट में सिर्फ वो आइडेंटिफाई करना है कौन सा लेवल है, तो Yes. उसमें जो ये फीचर वो मतलब इसमें है वो थोड़ी ना लिखना है। Beta, it will be good if we write down this feature also. Our answer should be in a way. Just have a look. Ashutosh Goenka is working as a top level manager because he has analyzed the business environment and he is finding out the reasons for decline in the profit. Is it okay? Okay, next one. Just have a look. इसको highlight आप भी कर लेंगे अपने क्वेश्चन में। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 4 रीड करते हैं आपके लिए, जस्ट हैव अ लुक। Rishitosh Mukherjee has recently joined AMV Limited, a company manufacturing refrigerator. He found that his department was understaffed and other departments were not cooperating with his department. बहुत सारे बच्चों को यहीं पे आंसर पता चल गया होगा। And other departments were not cooperating with his department for smooth functioning of organization. Therefore, he ensured that his department has the required number of employees and its cooperation with other departments is improved. केस आपको समझ में आ गया होगा। ऋषितोष मुखर्जी ने AMV लिमिटेड को ज्वाइन किया, उसको पता चला उसका डिपार्टमेंट अंडरस्टाफ्ड है और अदर डिपार्टमेंट्स उसके डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उसने इंश्योर किया कि उसके डिपार्टमेंट में पहले तो जितने एम्प्लॉयज चाहिए उतने एम्प्लॉयज को वो अपॉइंट करे, प्लस दूसरे डिपार्टमेंट के साथ उसका कोऑपरेशन इंप्रूव करे। You are supposed to identify the level at which he is working and you are also supposed to state any 3 other functions. You have to state 3 other functions that will be performed by him at this level. Okay, all right. Who will give the answer? Two of the students. What about the others? Yes, Lakshya. Identify the level.
मिडिल लेवल है मैम। मिडिल लेवल, हाउ? मैम उसको डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है ना, मतलब एक डिपार्टमेंट का हेड बनाया हुआ है। तो बिल्कुल, क्या हम इस हिज डिपार्टमेंट को हाईलाइट कर सकते हैं? उसका खुद का हाँ मैम। डिपार्टमेंट है, बिल्कुल सही, क्योंकि उसका खुद का डिपार्टमेंट है। जब किसी पर्सन को खुद का डिपार्टमेंट दिया हुआ है, इट मींस ही इज द डिपार्टमेंटल हेड, और डिपार्टमेंटल हेड्स वर्क एट मिडिल लेवल। ओके, नाउ राघव, टेल अस एनी 3 other functions that he will be performing. Yes, Raghav. Okay, wait. Yes, Sushant. मैम अदर 3 फंक्शन है मैम। एक तो वो कोऑर्डिनेट करते हैं मैम सुपरवाइजरी लेवल और टॉप लेवल के बीच में। और बिल्कुल, मैम वो लोअर लेवल के जो सुपरवाइजरी लेवल के जो होते हैं उनको मैम पूरा गाइड करते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो। और मैम वो मोटिवेट करते हैं मैम दूसरे और एम्प्लॉयज को। करेक्ट वन, वो मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉयज को बाय गिविंग देम इंसेंटिव्स। वो डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करेंगे। इसके अलावा वो लोअर लेवल मैनेजर्स को प्लान्स भी एक्सप्लेन करेंगे जो टॉप लेवल ने बताए। चलिए, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द केस स्टडीज ऑन पेज नंबर 33 ऑफ योर बुक related with the functions of management की function से related case study है। चलिए, MCQ number 1 जल्दी से, who will tell the answer? It bridges the gap between where we are and where we want to go. हम अभी कहाँ हैं और हम कल कहाँ पहुंचना चाहते हैं, इसके बीच के गैप को कौन सा फंक्शन ओवरकम करता है? यस नीरज। Planning. Planning, very good. Planning bridges the gap between where we are and where we want to reach, right? Okay, second one, थोड़ा सा क्विक चल रहे हैं हम। फर्स्ट का आंसर है आपका प्लानिंग, सेकंड का आंसर कौन बता रहा है? इट एस्टैब्लिशेस रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। थोड़ा सा लेवल अलग है इस क्वेश्चन का। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने वाला फंक्शन कौन सा है? यस रिया। ऑर्गेनाइजिंग, बिल्कुल। अगर आपको बोल दे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप कहाँ एस्टैब्लिश होता है, या आपको बोल दे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कहाँ एस्टैब्लिश होता है, योर आंसर विल बी ऑर्गेनाइजिंग। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब है कौन किसको आंसर देगा। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम एक फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं जिसमें हमारा बेसिकली रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है। ओके, नाउ केस स्टडी नंबर 3, जस्ट हैव अ लुक। The marketing manager of Alpha Limited fixed the target for all the sales executives and gave them all the possible authorities to achieve it. मार्केटिंग मैनेजर ने क्या किया? टारगेट सेट कर दिया सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के लिए और उनको अथॉरिटीज दे दी टू अचीव द टारगेट। They were asked to submit to him their performance report at the end of the month. मंथ के एंड में सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को बोला गया कि आपको अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। All of them did the same. On the receipt of report, the expected and actual results of sale executive were compared. On this basis, future course of action was decided. यानी जब रिपोर्ट आई तो हमने एक्चुअल वर्क को और एक्सपेक्टेड वर्क को कंपेयर किया। कंपैरिजन की बेसिस पे हमने फ्यूचर के लिए एक कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर दिया। नाउ द सेल्स एग्जीक्यूटिव्स आल्सो रोट इन देयर रिपोर्ट the expectations of the customers from the company. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंपनी से कस्टमर्स की क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस है। The majority of them had written that they wanted the company to cooperate in the construction of dharamshala going on in the city. मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स ने ये बोला कि वो इस कंपनी से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उस सिटी में धर्मशाला का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें कंपनी कोऑपरेट करे, कुछ भी फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकती है और अदर वे में भी कोऑपरेट कर सकती है। नाउ द मार्केटिंग मैनेजर प्लेस्ड दिस डिमांड बिफोर द बीओडीज। दिस वाज हैप्पीली एक्सेप्टेड। मार्केटिंग मैनेजर ने ये डिमांड बीओडी के सामने रखी और बीओडी ने इसको बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट भी कर लिया। अब आपको बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ बाय कोटिंग रिलेवेंट लाइन।
पहली बात तो फंक्शंस लिखा है, इट मींस मोर देन वन। पॉज डीसी में से ही इसके आंसर्स है। चलिए आप में से किस किस को आंसर आइडेंटिफाई करना पॉसिबल हो पाया है वो हैंड रेज कर लीजिए। Who will explain the answers? Yes, okay, I am explaining the answers for you. Just have a look. मैनेजमेंट फंक्शंस की यहाँ पे बात हो रही है, तो जो पहला फंक्शन आ रहा है, जस्ट हैव अ लुक, पॉसिबल अथॉरिटी टू अचीव इट। अथॉरिटी दी गई टारगेट को अचीव करने के लिए। जब टारगेट अचीव करने के लिए फिक्स अथॉरिटी दे दी, इट मींस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म हुआ है। एज अथॉरिटी इज गिवन इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नाउ जस्ट हैव अ लुक, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वाज डिसाइडेड। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वाज डिसाइडेड। क्या हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन प्लानिंग में डिसाइड करते हैं? प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, राइट। हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है, तो ये प्लानिंग से रिलेटेड है। एंड हियर द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट्स वर कंपेयर्ड, दिस वन, ये कंपैरिजन किया जाता है कंट्रोलिंग के अंदर। The expected and actual results of sale executive were compared, it means हमने कंट्रोलिंग फंक्शन किया। आपको इन तीनों फंक्शंस को एक्सप्लेन भी करना है आफ्टर कोटिंग द लाइंस। चलिए आज का डिस्कशन यही ओवर करते हैं। ये सारी केस स्टडीज आप पढ़ के रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।